हेलो एंड वेलकम माय डियर क्लैट एस्पिरेंट्स। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी, क्लास में भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर वेयर टू रीड लीगल आर्टिकल्स फ्रॉम। बच्चे पूछ रहे हैं सर आपने टाइम टेबल में लिखा है लीगल आर्टिकल्स कहाँ है, आपने बताया था बट हम भूल गए हैं। आपने टाइम टेबल में बार बार मेंशन किया जनवरी फरवरी, और मैं मार्च वाले टाइम टेबल में भी आई एम गोइंग टू मेंशन अबाउट रीडिंग लीगल आर्टिकल्स, वन लीगल आर्टिकल पर डे, राइट? एंड द यूजफुलनेस ऑफ लीगल आर्टिकल यू ऑल नो. So today I am going to tell you all the sources, probable and good sources from where you can start reading legal articles. And once you've read 60-70 articles, उसके बाद आप sources change कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस से एक नया वीडियो लेके आएंगे where you can use the advanced sources. These are the very basic sources. वो आप पढ़ सकते हैं legal articles यहाँ से। Okay. So ये वो सारे सोर्सेज हैं जहां से आप लीगल आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लीगल से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, एडिटोरियल है, तो यू कैन, और ओपिनियंस, यू कैन read from all these sources. Now I'll give you I'll show you the exact website and the exact tab from where you can read it. Okay, first of all let's go to live law. So under live law there are various tabs, and certain tabs are important. Not all the tabs are important, but the most important tab here is this one, articles. Okay, the most important tab here is articles. The second most important is know the law. Know the law. If you wish to read about a particular law, this is the tab. And if you wish to read about opinions, different opinions with respect to the current affairs, with respect to latest Supreme Court judgments, with respect to latest legal, political and legal current affairs, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो. And the third one which is important for us is top stories. Top stories provide you with legal current affairs and legal news articles. There are no opinions but just news reporting. जैसे द हिंदू में न्यूज के पेजेस होते हैं, ये सिमिलरली वैसा है, और ये एडिटोरियल्स की तरह वैसा पेज है. Now second one is SSC online blog. Now let me remind you that this is not SSC online, this is SSC online blog. दोनों डिफरेंट हैं. तो SSC online ब्लॉग से आपको शुरू करना है. ब्लॉग में भी कुछ इंपॉर्टेंट टैब्स हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज न्यूज, देन ओपीडी, सबसे इंपॉर्टेंट है ओपेड्स, ओपीईडी. Okay, OPEDs, opinions and editorials, is the most important tab where you will get different editorials and different opinions. Let's see OPEDs, right? ये different editorials articles हैं. किसी भी, चाहे आप लाइव लॉ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, चाहे आप एससीसी ऑनलाइन से या किसी भी सोर्स से कर रहे हैं, आर्टिकल्स या ओपेड शुरू कीजिए. एंड आफ्टर दैट चूज अकॉर्डिंग टू द हेडिंग. इफ यू थिंक ये हेडिंग आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, ठीक है, डोंट गो बाय द टॉपिक्स, डोंट गो बाय एनी ऑर्डर. ठीक है, जो हेडिंग आपको अच्छी लग रही है वो एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं किसी भी वेबसाइट से, किसी भी कोई भी एक आर्टिकल. फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू लाइव लॉ में वी गो टू आर्टिकल्स. These are the articles. Use of unrelied documents during framing of charges, है ना, या फिर a fillip to democracy, Supreme Court's electoral bond verdict. ना मुझे ऐसा लगा कि electoral bond verdict is a good article to read. ठीक है, I find it interesting, तो वो पढ़ना शुरू कर दीजिए. तो for next 30-40 days or 50 days depending upon your comprehension skills, for next 30 to 50 days read articles which are of your interest. ठीक है, जो आपको लगता है मैं पढ़ सकता हूं, जो मुझे अच्छे से आते हैं, सिर्फ वो आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं. 50 डेज के बाद में यू हैव टू पिक अप आर्टिकल्स जिसमें आप जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हैं. Okay, so after 50 days, you are not going to pick up articles based on your interest level. You are going to pick up those articles which are out of your comfort zone. Okay, resuming back, second one is OPEDs. ठीक है, इसमें SCC ऑनलाइन में OPEDs is good. OPED is very good. Second is no law made easy. This is similar to the live law know your law tab. ठीक है, लाइव लॉ में जैसा हमने देखा था ये टैब, जस्ट अ सेकेंड, लाइव लॉ में हमने नो द लॉ टैब देखा था. नो द लॉ और SCC ऑनलाइन का लॉ मेड इजी आर सेम. ओके, आई प्रेफर लॉ मेड इजी अगर आपको लॉ के बारे में जानना है, क्योंकि बहुत इजीली और बहुत ससिंक्टली यहाँ पे समझाया हुआ है. ठीक है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट वन इज articles.manupatra. तो मनुपात्रा इज अ लीगल रिसर्च वेबसाइट जहां पे आपको
मनु पात्रा की खुद की अलग वेबसाइट है जहां पे वो लीगल रिसर्च देता है, केस लॉज देता है, बट दैट इज पेड. ओके, मनुपात्रा आर्टिकल्स इज फ्री. तो मनुपात्रा articles.manupatra.com पे आप लॉगिन, आप जाके और सर्च करके यू कैन रीड वेरियस आर्टिकल्स. ओके, सो दीज आर द आर्टिकल्स बाय स्टूडेंट्स. दीज आर्टिकल्स हैव बीन रिटन बाय स्टूडेंट्स. फिर बाय प्रोफेशनल्स देख सकते हैं, बाय एकेडमिक जर्नल्स देख सकते हैं, फ्रॉम द लॉ फर्म्स. कैटेगरी वाइज आर्टिकल्स हैं, तो यू टू स्टार्ट विद बाय स्टूडेंट्स एंड बाय प्रोफेशनल्स. ये दो तरह के आर्टिकल्स आपको पहले मनु पात्रा से पढ़ने. इट इज अ वेरी गुड वेबसाइट और ये आपको ना बाद में कॉलेज टाइम में भी रिसर्च में काम आएगी. ओके, द नेक्स्ट वन इज बार एंड बेंच. सेम, बार एंड बेंच का भी सेम चीज है. कॉलम्स आप पढ़ सकते हैं, कॉलम्स, एडिटोरियल आर्टिकल, जहां ये वर्ड हो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो दिस कॉलम्स टैब इज वेरी इंपॉर्टेंट. बार एंड बेंच में कॉलम्स टैब है, आप पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड इंटरेस्ट. Now, I pleaders, I do not prefer generally for reading opinions. I prefer I pleaders if you want to understand a particular law. जैसे हम I pleaders में blog में जाते हैं. Okay, why may not be, what may not be claimed as an infringement of certification. तो पूरा आपको explain करेगा. What is certification, trademark, use of certified trademark. ये सारी चीजें वो आपको समझाएगा डिटेल में. तो इफ यू विश टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर लॉ इन डिटेल एंड इन कंजंक्शन विद द करंट अफेयर, तो वो आप यहां पे आई प्लीडर्स पे पढ़ सकते हो. बट इफ यू विश टू रीड ओपिनियंस, आई डोंट प्रेफर आई प्लीडर्स. ओके, इफ यू विश टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ, फॉर एग्जाम्पल यू गेव अ मॉक और उस मॉक में से ट्रेडमार्क पे क्वेश्चन आया, पैसेज आया लीगल में, एंड यू कुडंट डू ऑल द 5 क्वेश्चंस प्रॉपर्ली और 4 क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. इन दैट केस, इफ यू विश टू रीड मोर अबाउट ट्रेडमार्क्स लॉ, देन यू मस्ट कम टू आई प्लीडर्स. Okay, and the last one is The Wire. Why am I saying The Wire? Because The Wire से last year 3-4 कम से कम at least 3-4 passages last CLAT 2023 में The Wire से थे, 2024 में भी The Wire से थे. ठीक है, तो इसका जो लॉ टैब है, it provides you an insight into different current legal affairs, right? तो वो आप पढ़ सकते हो. ये सारी चीजें, इसके पीछे लीगल बैकग्राउंड क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ द वायर इज ऑल दीज अदर टैब्स. ओके, सो इफ यू विश टू डेवलप योर क्रिटिकल थॉट, क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आपके सीआर में प्रॉब्लम आ रही है और इस तरह के आर्टिकल्स आप पढ़ें तो सीआर का इशू सॉल्व हो सकता है. सो ट्राई एंड रीड दीज आर्टिकल्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में आप ओपिनियंस पढ़ सकते हो अलग अलग ऑथर्स के. तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू in developing your critical understanding and critical thinking. Now, the next thing is, how should I read articles? पढ़ना है आर्टिकल को, लीगल प्रिंसिपल नोट डाउन करना, दैट इज इट, एंड द आर्ग्यूमेंट्स दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू ऑल ऑफ यू in the earlier sessions, right? Now, while you are reading article, keep one thing in mind, that you have to note legal opinion only, legal principle. What legal principle has been highlighted in the article, that would be related with the heading itself, है ना? And how is author supporting arguments, supporting or contradicting contra arguments by author. Either author would be supporting a particular point or author would be contravening a particular point. तो आपको इसमें से देखना है author के arguments क्या हैं. That is what you have to write only and revise it again and again. If you develop this habit, it will be helpful for you in the passages. तो ये आपको ध्यान में रखना है और यही सोर्सेज से आप अगर रोज एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो आई कैन अश्योर यू दैट योर लीगल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग वुड डेफिनेटली improve by the end of 3 months from now. So I hope I've clarified where to read the articles question completely. Thank you very much, guys.